پھر الصائب بن یزید سے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے میری خالہ نبی کے پاس لے گئی صلی اللہ علیہ وسلم اور عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک میرے بھانجے کے سر میں درد ہے۔ آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر آپ نے وضو کیا، پھر میں نے آپ کے وضو کا پانی پیا، پھر میں آپ کی پشت کے پیچھے کھڑا ہو گیا، پھر میں نے آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا۔ حضور کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، یہ حضور کی مہر خاتم النبیین تھی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو مہر نبوت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، جس کا آسمانی کتابوں میں وعدہ کیا گیا تھا۔ تو حضور کی مہر، کئی اس پر روایات ہیں، کئی صحابہ نے دیکھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر نبوت۔ موزے پر مسح کرنا یہ شریعت میں جائز ہے۔ وضو کر کے موزہ پہنا ہے، تو اب اگلی نماز کا وقت آیا ہے، وضو کرنا چاہتے ہیں تو سارا وضو کر لیا جائے اور موزے پر مسح کر لیا جائے۔ یہ حضور کی سنت بھی ہے، یہ آسانی بھی ہے، یہ جائز بھی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سعد بن ابی وقاص سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے موضوع پر مسح کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عمر سے اس کے متعلق سوال کیا کہ کیا یہ حقیقت ہے؟ یعنی انہوں نے سعد بن ابی وقاص سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضور کو موضوع پر مسح کرتے دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کی جو روایت ہے وہ معتبر ہے؟ مقصد یہ تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا، ہاں، جب تمہیں حضرت سعد نبی سے کوئی حدیث بیان کرے تو تم اس کے متعلق کسی اور سے سوال نہ کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص وہ صحابی ہیں جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا، اور اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے ہوتے رہتے ہیں۔ عمر بن سعد جو لشکر یزید کا میدان کربلا میں سپہ سالار تھا، وہ بھی سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا۔ تو یہ میں نے کہا اچھوں سے برے اور بروں سے اچھے ہوتے رہتے ہیں، لیکن آپ معروف صحابہ میں سے ہیں، جو اولین صحابہ ہیں ان میں سے آپ کا شمار ہوتا ہے، اکابرین صحابہ میں شمار ہوتا ہے، عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے، جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے جنت کی دنیا میں بشارت دی تھی۔ تو بے شمار صحابہ سے اس طرح کی احادیث مروی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے موضوع پر مسح کیا۔ اس حوالے سے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور سے بیان کرتے ہیں کہ حضور قضاء حاجت کے لیے گھر سے نکلے تو حضرت مغیرہ چمڑے کے ایک برتن کو لے کر آپ کے پاس گئے، آپ کے پیچھے گئے جس میں پانی تھا۔ جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے آپ کے اوپر پانی ڈالا، تو آپ نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا۔ تو موضوع پر مسح جائز ہے۔ پھر ایک روایت ہے عروہ بن مغیرہ اپنے والد سے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، میں نے آپ کے موزے اتارنے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا ان کو رہنے دو، کیونکہ میں نے ان میں پیروں کو پاک حالت میں داخل کیا ہے۔ بس آپ نے ان پر مسح کیا۔ یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا، امام شافعی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد موزے پہننے ہیں، اگر یعنی حالت وضو میں موزے پہنے ہیں تو پھر مسح کیا جا سکتا ہے، تو اگر حالت وضو نہیں ہے تو پھر مسح ان پر کیا نہیں جا سکتا۔ احناف کا موقف ہے کہ جو حضور نے کہا ہے کہ ان میں پیروں کو پاک حالت میں داخل کیا ہے، اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کے پیر جو تھے ان پر کسی قسم کی نجاست نہیں لگی تھی، لہذا
अगर गुस्ल है, हालत जनाबत नहीं है, लेकिन वुजू अगर नहीं है तो उस सूरत में भी मोजे पहने जा सकते हैं और उन पर मसा किया जा सकता है। फिर एक मशहूर मसला लोग पूछते भी रहते हैं, वो ये है कि अगर कोई पका हुआ खाना खाए तो उसके बाद वुजू करना जरूरी है कि नहीं है। इस हवाले से हजरत ज़ैद बिन असलम कहते हैं अता बिन यसार से, और उन्होंने अब्दुल्ला बिन अब्बास से रवायत किया कि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का कंधा खाया, फिर नमाज पढ़ी और वुजू नहीं किया। तो पकी हुई चीज को खा लेने के बाद भी वुजू की हाजत नहीं रहती, और पकी हुई चीज खाने के बाद वुजू टूटता भी नहीं है। फिर एक रवायत है, इमाम तिरमिज़ी ने कहा है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर असहाब का इस पर अमल है, और ताबीन का भी, और उनके बाद के फुकहा का भी, जैसे सुफियान सौरी, इमाम शाफी बिन मुबारक, इमाम अहमद, इमाम इसाक। उन्होंने गुमान किया कि आग की पकी हुई चीज से खाने के बाद वुजू वाजिब नहीं होता। यही रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कामों में से आखिरी काम है। तो इस पर कुछ अहादीस भी हैं जिनमें हजूर ने फरमाया था कि वुजू, पकी हुई चीज खाने के बाद वुजू किया जाता है। तो इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि वो अवैल दौर में था, बाद में वो हदीस आका अलैहिस्सलाम के अमल मुबारक से मनसूख हो गई, या हुक्म मनसूख हो गया। अमूमन ऐसा होता रहता है कि पहले एक हुक्म आता है, कुरान में भी है, फिर दूसरा हुक्म उसको मनसूख करता है। हदीस में भी ऐसा है कि आका अलैहिस्सलाम ने अमल किया, फिर बाद में वो अमल छोड़ दिया, उसके बरखिलाफ किया। रफा यदैन के हवाले से भी हमारा यही इख्तिलाफ है कि पहले हजूर ने रफा यदैन किया है, लेकिन आखिरी हालत में हजूर ने रफा यदैन नहीं किया। अब जिन्होंने बाद में हजूर को नहीं देखा रफा यदैन छोड़ते हुए, तो वो उस पर पक्के हो गए कि हमने देखा है कि हजूर ने रफा यदैन किया है, और जिन्होंने बाद में देखा है कि हजूर ने रफा यदैन छोड़ दिया था, वो उस पर पक्के हो गए कि बाद में हजूर ने रफा यदैन नहीं किया। हजूर ने फरमाया कि मेरी उम्मत में जो मसाइल का इख्तलाफ है वो बायस से रहमत है, वो बायस से रहमत है, लेकिन नेक नीयती से हो, फतूर और फितने पर मबनी ना हो, जो हकीकत में उसको समझ आई है उसके मुताबिक हो। अब ये जो हलाल जानवर हैं जिनका गोश्त खाते हैं, इनका जो पेशाब है वो अहनाफ के नजदीक निजासत खफीफा है, हल्की निजासत है। अब अहनाफ में ही हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक निजासत गलीजा है। एक तो ये समझ लें कि अहनाफ में 3 अकाबर आइम्मा है, 4 बल्कि, जिनमें से इमाम आजम है, अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ है, इमाम मोहम्मद है, इमाम जुफर है। ये जो पहले 3 है, इनका मकाम अहनाफ फिक़ह हनफी में बहुत ज्यादा है। इमाम जुफर का अपना जो कौल होता है तो उस पर फतवा नहीं होता, अगर वो किसी के साथ मिलते हैं तो फिर उस पर भी फतवा आता रहता है। तो कई मसाइल में बल्कि 50-60% मसाइल में साहिबाइन का इमाम आजम से इख्तलाफ है। फतवा हमेशा उस पर ला जाता है तीनों में से जिधर 2 हो गए, लेकिन अक्सर देखा गया है कि इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद एक तरफ है और इमाम आजम दूसरी तरफ। तो अगर ऐसा हो तो फिर फतवा साहिबाइन के कौल पर होगा, लेकिन अगर इमाम अबू हनीफा और इमाम मोहम्मद एक तरफ है तो फिर फतवा उन पर होगा, उनको तरफैन कहते हैं। अगर इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ एक तरफ हुए तो फिर फतवा उन पर होगा, उनको शेखैन कहते हैं। यानी फिक़ह की टर्म में, आइमा की टर्म में उनको शेखैन कहते हैं, और अगर इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद हो एक तरफ तो उनको साहिबैन कहते हैं, साहिब, क्योंकि वो दोनों शागिर्द हैं इमाम आजम अबू हनीफा अलैहिर्रहमा के। तो इख्तलाफ होता रहता है, उस्ताद शागिर्द का इख्तलाफ होता है। यहाँ पे 80% 60% मसाइल में उस्तादों ने शागिर्दों से इख्तलाफ किया, शागिर्दों ने उस्ताद से इख्तलाफ किया, लेकिन फिर भी वो उसी मसलक में रहे। उस्ताद और शागिर्द का अदब और एहतराम का वही रिश्ता रहा। हमारे यहाँ अगर मामूली बात पर इख्तलाफ हो जाए तो रिश्ते भी टूट जाते हैं, अदब भी खत्म हो जाते हैं, बस या वो काफर हो जाता है
तो बस वो मसलक से निकल जाता है। पहले तो सुन्नियत से निकालते हैं, फिर उसको इस्लाम से ही खारिज करते हैं। अगर जिसका इख्तिलाफ हो, वो उसको निकाल रहा होता है, ये उसको निकाल रहा होता है। इस हवाले से बड़ी एहतियात की जरूरत है। ये याद रखने जुमला, किसी कलमा गो को काफिर कहने की इजाजत नहीं है। किसी कलमा गो को काफिर कहने की इजाजत नहीं है। इस हवाले से बड़ी एहतियात की जरूरत है। जिसने गुस्ताखी की है, कोई मसलक की बिना पर भी हम किसी को काफिर नहीं कह सकते। हाँ, उस मसलक में से अगर किसी ने गुस्ताखी की है, या किसी ने बेअदबी की है किसी मसलक से, तो उसको मुर्दे जान ठहराया जाएगा। पूरे मसलक को हम काफिर कह सकते नहीं है। लेकिन याद रख लें, अगर किसी ने एलानिया गुस्ताखी की है तो उसको गुस्ताख कहेंगे। उसका अगर किसी मसलक से ताल्लुक है तो मसलक की बिना पर उसको गुस्ताख कहने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। तो दूसरी बात यह है कि काफिर कहने में तो बहुत बड़ी एहतियात की जरूरत है। हजूर ने फरमाया, अगर तुम किसी को काफिर कहोगे, अगर वो काफिर नहीं है तो वो कुफर तुम्हारी तरफ पलट जाएगा। हम लोगों के दिलों के राजों को नहीं जानते, वो खुदा जानता है। अगर बगैर कोई कलमा पढ़ता है तो हम उसके मुसलमान होने के दावेदार हैं। गुस्ताखी करता है, हमें मालूम है, तो फिर उसको गुस्ताख कहेंगे, वरना उसके अमाल उसके साथ है। हम कोई किसी के अकायद के ठेकेदार नहीं है। दुआ है अल्लाह जल्ल मजदहू अमल की तौफीक अता फरमाए।